Hello, students. We'll see some more multiple choice questions taken from the chapter Natural Resources, and this is the chapter from class ninth Biology. We'll see some questions and we'll find out the answers with the explanation. So, the first question is low visibility during cold weather is. कोल्ड वेदर में विजिबिलिटी जो है वो घट जाती है. इसका रीज़न क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, unburned carbon particles or hydrocarbons suspended in air, lack of adequate electric supply, or none of these. So, as you know, whenever we burn something, then unburned carbon particles release into the air, and these carbon particles get mixed up with the fog in the environment in the cold weather and make the visibility low. And hydrocarbons also, when they suspend in the air and they get mixed with the fog and lower the visibility. So this is the right answer. Option number 2, the unburned carbon particles and hydrocarbons suspended in the air, they mix up with the fog during the cold weather and lower the visibility. And we'll see the next question now. The next question is growth of lichens on barren rock is followed by the growth of. बैरन रॉक पे जो लाइकेंस ग्रो करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म वहाँ पर ग्रो करता है? मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एल्गी. सो द राइट आंसर इज मॉस. ठीक है, कोई भी रॉक जो बैरन होती है उस पर कोई प्रीवियसली कोई प्लांट्स या वेजिटेशन नहीं होता है, तो सबसे पहले वहाँ पे लाइकेंस जो है वो ग्रो करते हैं. एंड लाइकेंस के ग्रो करने के बाद जब इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, वाटर कुछ आ जाता है, तो उसमें फिर दूसरे उसके बाद जो दूसरा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे कोई वेजिटेशन ग्रो करता है, तो वो मॉस होता है. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट एंड लिटिल प्लांट्स हैं जो कि कम से कम न्यूट्रिएंट्स में एंड ग्रो कर जाते हैं एंड फर्दर दे enhance the vegetation over the rocks. So the correct answer is moss. Now we will see the next question, question number third. Question number third is asking you that mark temperature changes in aquatic environment can affect. किसी aquatic environment में, किसी aquatic body में अगर temperature जो है वो change होता है, तो उससे उस environment में, उस aquatic body में क्या फ़र्क पड़ेगा? Okay. Breeding in animals, more growth of aquatic plants, process of digestion in animals, availability of nutrients. तो जब भी कभी किसी एक्वेटिक बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, तो उस एक्वेटिक बॉडी में रहने वाले एनिमल्स के ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है. तो temperature change in the aquatic environment can affect the breeding in animals. So the right answer is option 1, breeding in animals. Next question. Soil erosion can be prevented by. Soil erosion को हम कैसे रोक सकते हैं? How can we prevent it? By raising forest, by deforestation, by excessive use of fertilizer, by overgrazing by animals. So as you know, uh, soil erosion क्या है? Soil erosion is the जो top most fertile layer है सॉइल की, वो क्या होती है, एक जगह से रिमूव हो जाती है एंड इसी को आप सॉइल इरोजन कहते हो. तो सॉइल इरोजन को अगर रोकना है तो हम क्या करें? हम प्लांट्स लगाएं. वी शुड प्लांट्स द ट्रीज, वी शुड ग्रो द प्लांट्स सो दैट, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं, वो रूट्स क्या करते हैं? सॉइल को होल्ड करके रखते हैं. तो ये जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर है वो यहाँ से रिमूव नहीं हो पाती है. ठीक है, तो रेजिंग फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. Next, question number 5. This is asking you that which of the following is not a greenhouse gas? इसमें से कौन सी greenhouse gas नहीं है? So, methane, carbon dioxide, carbon monoxide, ammonia. So, the correct answer is ammonia. Okay, as you know, the methane, carbon dioxide, and carbon monoxide, all these gases are greenhouse gases. They trap the heat radiation and maintain the temperature of the earth, atmospheric temperature of the earth. So ammonia is the correct answer. This is not a greenhouse gas. Okay, now we'll see the next question, question number 6. Okay, so this is soil. Topsoil contains the following.
टॉप सॉइल में क्या क्या होता है? ह्यूमस लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, ह्यूमस लिविंग सॉइल पार्टिकल्स ओनली, ह्यूमस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, ह्यूमस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड पार्टिकल्स। तो आप जानते हैं सॉइल, टॉप सॉइल जो होती है उसमें ह्यूमस लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज प्लांट्स जो होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्म्स इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं एंड प्लांट्स ग्रो करते हैं उसी में। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, मेजर सोर्स ऑफ मिनरल इन सॉइल इज। सॉइल में जो मिनरल पाया जाता है उसका मेजर सोर्स क्या होता है? तो पेरेंट रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म्ड, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया। तो जो सॉइल में मेजर जो मिनरल होता है वो उसके पेरेंट रॉक से ही आता है। जिस रॉक से वो सॉइल बनी होती है वहीं से जो है वो मिनरल्स उस सॉइल में अवेलेबल होते हैं, मिक्सअप होते हैं। So the correct answer is option number 1. Now we'll see the question number 8. What happens when rain fall on soil without vegetational cover? क्या होगा अगर बारिश हो जहाँ पे वेजिटेशन ना हो? तो इससे क्या होता है, जब अगर ओपन सॉइल पर, ओपन लैंड पर पानी बरसता है तो क्या होता है, वेजिटेशन जिस पे नहीं होगा तो क्या होगा, जो सॉइल की जो सरफेस होगा, ठीक है, जो अपर मोस्ट सरफेस होगा, इट विल बी लॉस्ट बाय द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर फ्लो के साथ वो जो सरफेस होगी, सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होगी, इट विल बी लॉस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. An increase in CO2 content in atmosphere would not cause, okay, more heat to be retained by the environment, increase in photosynthesis in plants, global warming, abundance in desert plants. ठीक है, CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ने से क्या नहीं होगा? तो CO2 अगर बढ़ जाती है तो उससे ज़्यादा हीट एनवायरनमेंट में रिटेन होगी। यस, क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, ये हीट रेडिएशन को ट्रैप करती है। ग्लोबल वार्मिंग होगी, उससे CO2 ज़्यादा होगा, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी तो उस ग्लोबल वार्मिंग होगी, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। अबंडेंस ही डेजर्ट प्लांट्स की जो नंबर्स हैं वो बढ़ेंगे। ठीक है, बट ये नहीं होगा, इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, इट विल नॉट अकर। सो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नाउ आई विल सी द लास्ट क्वेश्चन. ऑक्सीजन इज हार्मफुल फॉर, ऑक्सीजन किसके लिए हार्मफुल है? फर्न के लिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए, कायरा के लिए, मैंगो ट्री के लिए। तो आप जानते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को N2 को फिक्स करते हैं यूजेबल फॉर्म में, ये बैक्टीरिया जो हैं वो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उसके लिए ऑक्सीजन जो होती है वो हार्मफुल होती है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन ये प्रोसेस होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन नंबर 2, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये बैक्टीरिया नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू.